Which of the following represents built-in inflation? तो inflation caused by external नहीं होगा, inflation caused by changes in government policies, inflation resulting from automatic increases in wages and prices, and inflation driven by speculative activities in financial markets. तो built-in inflation C या D में से होना चाहिए. वेजेस एंड प्राइस Automatic मतलब होता है कॉस्ट हो गया, तो सी हट के एक्सटर्नल फैक्टर फुल हो गया, है ना? speculative होना चाहिए. पी तो लगाऊंगा फिर इसमें, डी डी लाइन गवर्नमेंट पॉलिसी। सी है इसका आंसर। C है. Automatic increases in wages and prices. Okay. How many of the above are eligible to participate in the trading of priority sector lending certificates through Reserve Bank of India's e-Kuber platform? Priority sector lending certificates, scheduled commercial banks होगा, regional rural banks होगा, urban cooperative banks, small finance, local तब agencies, सारे होंगे, सबका तभी होता है. Toll operate transfer model. So it was designed to encourage private participation in highway sector. True. Under this model, national highways are given on short-term leases to private entities. ठीक है, toll operator for transfer, and then TOT operator collects user fees under the prescribed rates by NHI. तीनों ठीक होने चाहिए. शॉर्ट टर्म लीज Toll करें, लॉन्ग टर्म होता है। short term ही होना चाहिए. ये लॉन्ग मतलब टर्म होगा, शॉर्ट टर्म नहीं होता है। बी होना 2 साल चाहिए। के लिए देते हैं तो लॉन्ग टर्म लीज 15 से 30 साल। 2 साल होता है। In the context of फीस finance, the का term क्वेश्चन की फीस डिसाइड करते हैं एनएचए। हाँ. In the context of finance, the term total expense ratio refers to the amount of capital required to produce 1 unit of output, loss or potential gain by selecting one share of the company over another. Total expense ratio. Total cost associated with managing and operating a mutual fund, and the ratio of the bank's capital in relation to its risk-weighted assets and current liabilities. Total expense ratio. C होना चाहिए मेरे हिसाब से. कैसे मैं कैसे मतलब मतलब कैसे कर रही हूँ, क्योंकि वो टोटल एक्सपेंस की एक तो बात हो रही है, तो उसको आई थिंक तोड़ के नहीं देख सकते हैं. मैं डी लगाऊंगा इसमें। डी बोल रहा है रेशियो ऑफ बैंक्स कैपिटल रिलेशन, तो उसको टोटल एक्सपेंस पता नहीं, थोड़ा सेंस नहीं बन रहा मेरे हिसाब से. तो सी मेरे को एप्रोप्रिएट लग रहा है. ये फंड कंपनी से रिलेटेड सी इसका आंसर। सेबी प्रैक्टिसेस द मैक्सिमम टीईआर, ट्रेडिंग फीस, लीगल फीस, ऑडिटर फीस सब मिला करके जो खर्चा होता है वो। इसमें रिगार्डिंग द पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम aims to encourage the deployment of payment acceptance infrastructure such as the physical point of sale terminals. And PIDF is governed through an advisory council managed and administered by the Ministry of Finance. And beneficiaries of the Vishwakarma scheme has been incorporated as merchants eligible for deployment under this. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं तीनों होना मेरे हिसाब से। payments एनपीसीआई होना चाहिए। infrastructure development श्योर होगा। fund. हाँ वही है। हाँ नहीं एनपीसीआई कर 13। बी होना चाहिए। ठीक है 13. आरबीआई है। Payment infrastructure. अच्छा RBI है. बाकी ठीक है। How many of the above statements are correct? The bond price and bond yield are inversely related. True. Bond yield and interest rates are inversely related. ये भी ठीक है. Interest rates and bond prices are कौन से interest rates की अच्छी बात कर रही है? पहले तो ठीक है, bond price और bond yield inverse होती हैं. Interest rate and bond prices are inversely related. फिर bond yield और interest rates सारे inverse हैं. इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइसेस तीनों सही है। नहीं तीनों ठीक नहीं मिलेंगे, दो होने चाहिए कोई. ओनली 2 मार्क करें इसमें। 35 बी। क्या है? 35 बी। प्राइस ऑफ बॉन्ड शेयर नेगेटिव रिलेशन विद बॉन्ड यील्ड एंड इंटरेस्ट।
1 and 3 इज करेक्ट। जो सेकंड वाला बात हो रहा है इसमें, हाँ, सेकंड वाले का रियल एग्जांपल जैसे अभी करंटली हो रहा था ना पोस्ट कोविड टाइम पीरियड में, जैसे टाइट मॉनेटरी पॉलिसी थी तो एमपीसी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रही थी, मतलब रेपो रेट इंक्रीज हो रहा था। तो हम इसी वजह से देख रहे थे कि बॉन्ड कर्व का जो यील्ड कर्व इन्वर्जन जो हम बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म बॉन्ड जो है उनकी यील्ड इंक्रीज हो रही थी। होना नॉर्मली ये चाहिए कि जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स है उनकी यील्ड ज्यादा होगी कंपेयर टू द शॉर्ट टर्म। तो इसलिए इंटरेस्ट रेट्स और बॉन्ड यील्ड में डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है। तो इसलिए बॉन्ड यील्ड इन्वर्जन भी होता है। तो उसके बाद स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सरचार्ज इन सेस, तो प्रोसीड्स कलेक्टेड फ्रॉम बोथ द सेस एंड सरचार्ज विल बी डिपॉजिटेड इन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया कैन नॉट इम्पोज एनी सेस, दूसरा गलत है, पहला भी गलत होना चाहिए। और प्रोसीड्स ऑफ द सरचार्ज आर केप्ट एज अ सेपरेट फंड आफ्टर बीइंग कलेक्टेड इनटू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तीसरे का क्या सेंस है ये, एज अ सेपरेट फंड आफ्टर बीइंग कलेक्टेड, गलत ही है मेरे हिसाब से, तो तीनों कोई गलत है। चीज को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं ना, सेपरेट फंड हो सकता है। हाँ, सीएफआई तो नहीं होता है, क्योंकि ये तो 100% श्योर है क्योंकि वो सेंटर के पास ही जाता है अलग से। तो तीनों गलत है। ए है इसका आंसर। कौन सा सही है? सेकंड इज नॉट करेक्ट, स्टेट कैन लेवेट सेस इन रेयर केसेस ओनली इफ इट हम्म। इज अप्रूव्ड बाय जीएसटी काउंसिल। अच्छा, ये था, डाल देते 100 रुपये। अच्छा। और दूसरा जो 1 and 3 है दोनों करेक्ट, दो 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट। अब बताओ मानसी, सर, कंसोलिडेटेड फंड के पास कहा जाता है? नहीं, सेस और सरचार्ज जैसे हम बोलते हैं कि जो फाइनेंस कमीशन वाली चीज भी है कि डेवल्यूशन का पार्ट नहीं होती है। ये और एग्जैक्ट ज्यादा आर्टिकल ऑटोनॉमी सेंटर की 250 होती है तो। आर्टिकल 251 की डेफिनेशन है, ये पहला जो लिखा हुआ है ये मैं देखा था। आर्टिकल 251 कहता है कि फाइनेंस कमीशन डिसाइड करेगा प्रोसीड सेस और सरचार्ज का जो सीएफआई के अंदर जाएगा। ठीक है, दोनों सीएफआई में जाएंगे, बट वो फाइनेंस कमीशन का अभी पार्ट ऑफ डेवल्यूशन नहीं है दोनों। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर पब्लिश्ड बाय द यूएनडीपी? जेंडर इनइक्वालिटी, ग्रॉस नेशनल नेशनल हैप्पीनेस हैप्पी, इंडेक्स और क्या, बेटर लाइफ, फिजिकल क्वालिटी ऑफ बाकी लाइफ सुने भी नहीं। इंडेक्स। हम्म। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स होता है, इट इज एस्टैब्लिश बाय यूएनडीपी, ओनली वन है। बाकी जो है हम्म। बेटर लाइफ, ये ओईसीडी का है। फिजिकल क्वालिटी ऑफ इन लाइफ, ये मॉरिस डेविड मॉरिस। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, जीएनएच हैप्पीनेस सर्वे, उसका है। अच्छा। What does the concept of job polarization the labor market refers to? Simultaneous growth of high skilled and low skilled jobs with a decline in middle skilled jobs. ये हो सकता है। The equal distribution of the job opportunities तो नहीं होगा, polarization नहीं होगा उसमें, इधर elimination the low jobs and लो भी पढ़ रहा expansion है, of हाई high भी पढ़ रहा skilled, है, बीच का खत्म। cyclical nature of the employment in the labor market, तो हाँ A ही appropriate है, high ये और low skilled बढ़ रहे हैं। ठीक है। Statements regarding the gross capital formation. So, gross capital formation is a part of the country's total expenditure which is not consumed but added to the nation's fixed tangible assets and stocks. So, it represents the excess of the current income over current expenditure of the various sectors of the economy. Gross capital formation, excess of current income over current expenditure. नहीं, दूसरा मेरे हिसाब से उल्टा लिखा हुआ। ए होगा ओनली। टोटल एक्सपेंडिचर which is not consumed but added to the nation's fixed, हाँ पहले तो ठीक है। नीचे का जो एग्जांपल लिखा हुआ है वो सेविंग होना चाहिए, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो। हाँ, वो सेविंग करंट रिप्रेजेंट। इनकम ज्यादा बोल रहे हैं। Windfall tax, though it is imposed when companies increase prices in collaboration with other companies. It was recently imposed on the pharmaceutical इस pharma बार industry पे टैक्स इस नहीं बार था, और ये पहले भी गलत होना चाहिए। डी होना चाहिए, डी। कंपनी डिराइव फ्रॉम एक्सटर्नल समटाइम अनप्रेसिडेंटेड इवेंट,
अगर प्रॉफिट ज़्यादा करते हैं, फॉर एग्जाम्पल रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, जैसे सडनली क्रूड ऑयल सेंट्रल प्राइसेस गवर्नमेंट ने स्पाइक किया हो था जाते क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में। हाँ, हैं। NFRA, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड इन द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, नहीं, इस एक्ट के अंडर नहीं है। NFRA monitors and enforces compliance with accounting standards and auditing standards. True. It also recommends accounting and auditing brand standards to be hard. 2 and 3. 2 and 3. And Operation Prosperity Guardian, it's a multinational security initiative launched by the US, was launched to aid the safe movement of ships in the नहीं, South China Sea. दूसरा गलत होगा. रेड सी का अराउंड था। Only one. ए हाँ। हाँ, वही रेड सी के अराउंड ही था. हम्म। Consider the following statements in the context of Banking Stability Index. The index measures the level of interdependence of the financial institutions, mainly banks, published by the Economist Intelligence Unit. दोनों हो सकते हैं, ठीक. पता नहीं, मुझे लग रहा डाउट लग रहा है इस पे। ओनली वन। बैंकिंग स्टेबिलिटी बोल रहा है तो इंटरडिपेंडेंस में ठीक होना चाहिए. पहला गड़बड़ होगा। सेकंड वाला गलत है, इंस्टीट्यूशन का नाम गलत है। कौन करता है पब्लिश? अजीब नाम है, टॉक्सिसिटी एंड वर्नेबिलिटी इंडेक्सेस। जरूरत ये नहीं। तो सुना. पहला ठीक है. हाँ, पहला थे। Statements with respect to inverted duty structure. तो under this the import duty on the finished goods is kept high. नहीं, गलत है. Raw materials पे ज्यादा होती है. Adversely affects the domestic manufacturing Inverted है। industry. True. ठीक है। दोनों पहला गलत है, दूसरा ठीक बी। है. हाँ, बी। इसमें public debt in India, तो the proportion of external liability in the public debt of India is more than 10%. नहीं, गलत होना चाहिए. Major portion of the public debt of India consists of marketable securities. Major portion marketable securities. पहला सही होगा, सेकंड Might. सबसे, क्योंकि नहीं, मैं पहला गलत, दूसरा liability ठीक तो होना public चाहिए. debt है। मैं दोनों ही गलत लगाऊंगी. बी है इसका आंसर। 2. मार्केटेबल मेजर सिक्योरिटी जिसे को टी बिल है। और पहला वाला जो है 5% है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी सिर्फ 5% है। अच्छा डेटा। दूसरे वाले में कितना प्रोपोर्शन है? दूसरे वाले में मार्केटेबल प्रोपोर्शन है लिखा हुआ है। नहीं लिखा, कितना परसेंटेज है? परसेंटेज ऑफ डेट रेज टू मार्केटेबल सिक्योरिटीज. लाख देख करोड़ में लिखा मुझे. हुआ है, उसमें नहीं लिखा है। Which of the following not included in the personal income? Corporation tax, savings of the private corporate sector and transfer income. Personal income में वन ओनली। not included. Corporation tax तो होगा. कॉर्पोरेट टैक्स नहीं इंक्लूड होता है उसमें, नहीं होगा मानसी। ना। और पर्सनल सेविंग इनकम मेरी टैक्स देने के कॉर्पोरेट बाद। इनकम टैक्स में होगा, और ट्रांसफर इनकम होगा इंक्लूड। हाँ, ट्रांसफर इनकम होगा. सेविंग्स ऑफ चलेगा द ना। प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर भी नहीं होगा, फिर दूसरा भी नहीं होगा. क्यों? दूसरा नहीं होगा ना, प्राइवेट सेक्टर को सेविंग क्यों होगा? कॉर्पोरेट नहीं, प्राइवेट कंपनी इंडिविजुअल में अगर लेवल पे चलाता फ्री हूँ तो कैसे मेरी है? जितनी सेविंग है वो मेरी पर्सनल इनकम है। दिक्कत क्या है उसमें? प्राइवेट इनकम है ना, लेकिन मान ले कोई अगर प्राइवेट नौकरी नहीं कर रहा तो ये उसको तो भी ऑप्शन ही नहीं है ना। नॉट देखो ये इंक्लूडेड. मेरे हिसाब से ओनली वन होगा। प्राइवेट इनकम माइनस कॉर्पोरेशन टैक्स माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस ट्रांसफर पेमेंट, तो नहीं होगा सेकंड भी। 1 and 2 इसका। समझ नहीं आया यार, ये क्यों नहीं होगा मतलब। पर्सनल इनकम में ये क्यों ऐड बहुत करेंगे प्राइवेट ऊपर करेंगे ना. सेक्टर सेविंग? पर्सनल इनकम में माइनस नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सेविंग मतलब क्या, प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर का मुकेश अंबानी का सेविंग की बात थोड़ी हो रहा है, रिलायंस कंपनी का सेविंग की बात हो रहा तो वो है। आपको मुकेश पर्सनली अंबानी थोड़ी का देगा पर्सनल आपको. इनकम हुआ ना, तो फिर रिलायंस कंपनी का सेविंग वो हट जाएगा, कॉर्पोरेट टैक्स हट जाएगा, जो ठीक है। बचेगा उसमें से सेविंग्स एक डिस्ट्रीब्यूशन तरीके होगा। से प्रॉफिट प्रॉफिट मान लो कि कॉर्पोरेट सेक्टर का प्रॉफिट है जो उनके पास प्रॉफिट हो बच गई। गया है. हाँ, तो आपको पर्सनली नहीं मिल रहा है. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स द मार्जिनल प्रोडक्टिव थ्योरी डील्स विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. मार्जिनल प्रोडक्टिव थ्योरी
लेबर मेरे हिसाब से लेबर होगा, लेबर ही होना चाहिए तो। कैपिटल। सही है भाई। मार्जिनल प्रोडक्शन कैपिटल, ठीक है। पता है मानसी कैपिटल क्यों होता है? नहीं, यहाँ पे फिर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल की बात हो रही है, दो ही होती है प्रोमिनेंट, तो या तो लेबर की बात होती है या कैपिटल की। तो कैपिटल वाली बहुत रेयर है, कम है कंपैरेटिवली, तो मैंने इसलिए सोचा लेबर हो सकता है। ज्यादा थ्योरीज लेबर प्रोडक्टिविटी की बात करती है। Which of the following best describes the term base effect? Refers to the contribution of the price change in the previous year to the current change in the inflation. It is the impact as a surge in the demand due to rapid economic. Refers to the effect of increasing. A होगा. ए, ठीक। Which of the following acts are recommended as per the clean note policy of the RBI? Right? अच्छा इसमें बोले select the correct term. Acts are recommended. Recommend कौन सी की जाती है? Write या put rubber stamps. Staple the banknotes. Use banknotes कुछ for नहीं making garlands and toys. तीसरा तो नहीं हो सकता. लियोन में से दूसरा Stapling भी of the नहीं, ऐसा थोड़ी banknotes भी है। नहीं होगा. Write ओनली और put rubber stamps भी नहीं होगा. कोई नहीं ओनली होगा, वन। कोई कोई नहीं भी होगा। नहीं रबर होना स्टैम्प चाहिए. तो लगा ही सकते हो यार, नोट के ऊपर क्या दिक्कत है? नहीं, लेकिन इसमें राइट भी तो लिखा है, लिखना थोड़ी हाँ, रिकमेंड करते हैं नोट्स के ऊपर. कोई भी नहीं हाँ होगा. राइट दिक्कत है, सही बात। डी डी। डी. नो है सब में, नॉट तो इसमें सब में है कर दिए। हाँ, ठीक है. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नेशनल इनकम अकाउंटिंग, तो फिशिंग वेसल्स, इसमें बोला हाउ मच अबव कॉन्स्टिट्यूट द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. फिशिंग वेसल्स ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल वाटर्स हम्म होगा. मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया लोकेटेड इन 1 2 अदर 3 होगा। कंट्रीज, ये नहीं होगा. फोर दूसरा नहीं कैसे होगा। होगा? अदर कोई नहीं दूसरा होगा कंट्रीज बस। वाला. हम्म एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स ऑफ फॉरेन, ये भी नहीं होगा. अच्छा, लोकेटेड इन इंडिया ये होगा. ऑफिसेज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लोकेटेड इन इंडिया, ये एम्बेसीज भी ऑफ होगा. कॉन्सुलेट फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन इंडिया, ये क्यों नेशनल इनकम अकाउंटिंग में होगा? वो तो उस कंट्री का होगा ना। सिर्फ डोमेस्टिक ऑफिस सिर्फ टेरिटरी फोर नहीं बोल होगा। रहे हैं वो, इनकम अकाउंटिंग नहीं हाँ, बोल रहे हैं. इन कंटेक्स डोमेस्टिक टेरी टेरिटरी व्हाट ऑफ इंडिया. कंस्टिट्यूट। हाँ, व्हाट कहाँ पर है? कंटेक्स इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी के ठीक अंदर में है, किसको इंक्लूड किया जाता है? फाइनली नेशनल। तो वो यही पूछ रहा है, लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या है? नहीं मानसी ये थोड़ी पूछ रहे हैं। पूछा है डोमेस्टिक टेरिटरी में जो है, मतलब कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग में किसको यूज करते हैं चारों में से? चारों आपकी में से डोमेस्टिक थर्ड नहीं टेरिटरी होगा, कहाँ फोर्थ नहीं कहाँ होगा। पर है, कहने का वन मतलब एंड ये टू। बोल रहा है। तो मेरी अगर एमएससी अमेरिका में है तो मेरी है, हाँ। वहाँ पे काम करने वाले मेरे। हम्म इसी तरीके से सूडान के अंदर जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स पे काम करते हैं इंडियन, वो मेरे। हम्म और WHO का हेडक्वार्टर इंडिया में, वो मेरे थोड़ी होंगे, वो उसके होंगे। यूके के जो ठीक है, एम्बेसी इंडिया में होंगे वो उसके होंगे, मेरे नहीं होंगे। 3 और 4 नहीं आएगा फिर इसका आंसर, 1 और 2 है इसका फोर आंसर। नहीं है बस। 3 और 4 भी नहीं रहेगा ना प्रवेश। एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट ऑफ फॉरेन कंट्री हाँ थ्री भी, लोकेटेड इन इंडिया। सही बात है, हाँ थ्री भी, सही बात, सही बात। इंडियन वन एम्बेसी एंड टू मतलब होगा बस. 1 और 2। सिर्फ 1 और 2 है। यही आंसर. हाँ। ठीक है. ठीक है. Okay, thank you everyone for joining us on Ansarkari. In next part, we'll be taking up the next 50 questions. Thank you so much.